We want this pattern now. Then again, the for loop for this I in range, because I need to go through the 5 lines. 5 lines तो मेरे को चाहिए ही चाहिए. 5 लाइन चाहिए तो ये 1,6 तो वैसे के वैसे रहेगा. And now I will keep the for j in range. I will keep it blank. I will keep it blank, and then I will print for j. Right? I want to print, or rather, I for loop nahi. Yeah, I should be using print statement. Okay. I should be using print statement. I should print the j comma end equals to usko blank, and then I will go back here and I will print here. Print नए लाइन के लिए, हर बार नया लाइन अगर मेरे को चाहिए तो उसके लिए ये, अब मेरे को ये वाला डिवाइस करना है, ये वाला डिवाइस करना है. ठीक है. Now every time, like look, the j should run from 1 to 6 here. जब I की वैल्यू क्या है, I will write it here, that will be better. I की वैल्यू क्या है, जब 1 है तो my j value should run down from 1 to 6, and no, ये 1 to 6 चाहिए. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को 1 to 6 ही डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 5. तो I की वैल्यू जब 2 बनती है तो this should run from 1 to 5. No, this should be 1 to 5, right? 3 जब भी है तो 1 to what it should be 1 to 4, and this should be like 4 जब भी है तो 1 to 4 की जगह पे क्या है 1 to 3 चाहिए, and जब भी 5 है तो 1 down to 2, right? तो likewise अगर है ये, अगर ऐसा दिख रहा है तो the equation that, if I wish to write the x equals to, तो ये I जब 1 है, I जब 1 है तो ये मेरे को 6 तक के चाहिए, ये मेरे को 6 तक के चाहिए. I जब भी 1 है तो ये जब भी 5, मतलब look, I can write something like this. This is x is 6 already, right? We know that. And मेरे को यहाँ पे और अदर, ओके, ऐसा आएगा इक्वेशन. सिक्स इक्वल्स टू x माइनस I. ठीक है. नाउ I इक्वल्स टू 1 है. I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 1 है, एंड यहाँ पे 6 है, तो x माइनस 1 विल बी, सो माइनस 1 यहाँ पे जाएगा इस साइड पे, तो 6 plus 1 बनेगा, which will make it as 7. So my x will be 7. So if I write something like this, if I write 1 comma 7 minus I, ठीक है. Look, next equation क्या है मेरा, जब 5 है, x minus 2 है, I की वैल्यू क्या है 2 है, तो x equals to 5 plus 2 बनता है, which makes it as 7. ठीक है. तो I can write instead of this 1,7 minus I अगर मैंने लिख दिया तो whatever we are expecting कि 1 2 3 4 5 पहले लाइन में, दूसरे लाइन में, तो जब ये आखिरी लाइन पे आएगा तो 7 minus 5 बनेगा, 7 minus 5 जैसे ही बनेगा तो we got like 1,2. So this is how I will be replacing here, like 1,7 minus I. ठीक है. I can write it this way, 7 minus I. Getting it? Let's try that. तो मैंने ये कोड कॉपी किया था, तो if I simply change this to 7 minus I, then you can see that it will print from 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1. Are you getting it? Like this pattern? Yes, people. Yes, sir. Yes, sir. No, there should not be any difficulty, right? Abhi, instead of j,
अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया इस जे को स्टार से, अगर मैंने स्टार लिख दिया यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जे, इफ आई पुट स्टार, then you will see the funny part, like you'll get star 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 pattern. Now star pattern बोलते यार कुछ भी whatever you wished, like उसको replace कर सकते. Instead of star you can have anything. You can have a hash, you can have @ symbol, whatever you want. So you can go ahead and you can develop the logic accordingly. Now let's continue on that note. अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे इसमें, थोड़ा सा और, ठीक है. So step by step we are increasing the difficulty level and then we will achieve the things. ठीक है. लोग कंप्यूटर को जो हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको स्पेसेस के बारे में समझ में नहीं आता है, तो हम लोग को खुद उसको बताना पड़ता है कि बाबा कहाँ पे स्पेस, कितना स्पेस आपको खुद को इंसर्ट करना है. अगर मेरा पैटर्न कुछ ऐसा है अभी, ठीक है, इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, if I have pattern something like this, like 1, ये साइड पे 1 आएगा, ठीक है, then I can have 1 2, I can have 1 2 3, I can have 1 2 3 4, and then I can have 1 2 3 4 5. This side, now there are spaces. There will be 1 space here, there will be 2 spaces here, there will be 3 spaces here. जितने भी स्टार दिखा रहा हूं मैं वो स्पेसेस है, 1 2 3 4. Now what we need to do is, जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये पहले स्टार पैटर्न जो है वो पहले स्टार पैटर्न एग्जीक्यूट होना चाहिए. अभी जो स्टार को हम लोग स्पेस से रिप्लेस कर देंगे बाद में, ये स्टार पैटर्न तो हम लोगों को मालूम है अभी. सो इफ आई विश लाइक 1 2 3 4 चाहिए मेरे को, राइट. सो यहाँ पे I equals to 1 down to 6 ही रहेगा. There will not be any change in that. ये स्टार के लिए मैं j पकड़ता हूँ. I will keep a j variable for that. And if I keep a j variable for that, पहले लाइन में 1 2 3 4 चाहिए मेरे को. 1 2 3 4, not 5. So what ये मेरे को 1 down to 5 मूव होना चाहिए. And उसके बाद 1 down to 4, उसके बाद 1 down to 3, उसके बाद 1 down to 2, and 1 down to 1. 1 down to 1 actually doesn't make sense. Actually it will not get printed. यहाँ पे आखिरी लाइन में मेरे को स्टार नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए स्टार. तो ये यहाँ तक ही रन करेगा, आखिरी इसमें वो एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा. 1 down to 1 will not execute as such. ठीक है. ओके, लुक, अगर मेरे को ये 1 down to 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये 1 है, तो व्हाट शुड बी आई राइटिंग फॉर दैट सेक? ये कोड क्या बनेगा? 1 कॉमा, व्हाट शुड बी द कोड? आई, अगर मेरा 1 2 3 4, आई इक्वल्स टू आई, दिस शुड बी 5. अभी इससे पहले यहाँ पे ही लिया हुआ है हम लोगों ने, ये लिया है ना, 4 तक के था. तो यहाँ पे अभी मेरे को 6 नहीं, ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ से शुरुआत करना है, शुरुआत यहाँ से करना है. तो व्हाट विल बी द थिंग? मेरे को 5 चाहिए, 4 चाहिए. जब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? 1 है. आई की वैल्यू क्या है? 2 है. आई की वैल्यू क्या है? 3 है. आई की वैल्यू क्या है? 4 है. आई की वैल्यू 5 है. सो व्हाट विल बी दिस इक्वेशन विल गेट? इट विल बी 6 minus I now. It will be 6 minus I. तो मेरे को ये स्टार पैटर्न मिलेगा, मेरे को ये स्टार पैटर्न मिलेगा. ठीक है. नाउ दिस 1 1 2, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. ये भी पैटर्न हम लोगों ने किया हुआ है. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या मिला? हम लोगों को I is I plus 1. बोलो. तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ j I will take it as k करके लेंगे उसको, एंड विल राइट इट एज 1 कॉमा I plus 1. ये वाला तो फिक्स है.
तो मेरे को ये पहले करना है, उसके बाद ये वाला लूप यूज करना है, और उसके बाद मेरे को प्रिंट एक ब्लैंक स्टेटमेंट डालनी है, ठीक है। सो जब भी आपको ऐसे कभी भी पैटर्न दिखता है तो विल यूज इट दिस वे. Let's make it. So we'll write the first statement as for I in range, it's a 1,6. मेरे को 5 रो चाहिए. दूसरा फॉर लूप मेरे को स्टार वाला पैटर्न पहले कंप्लीट करता है. तो फॉर मतलब स्टार पूरा का पूरा एक ही इसमें कंप्लीट नहीं होता है, पहले ये 4 प्रिंट होते हैं, उसके बाद ये वाला प्रिंट होता है, फिर नया लाइन को जाता है, फिर ये 3 प्रिंट होते हैं, ये 2 प्रिंट होते हैं, फिर ये 2 प्रिंट होते हैं, ये 2 प्रिंट, मतलब हर बार नए लाइन को जाने के बाद एक, ये 4, और फिर नए लाइन को जाने के बाद 1 2 3. तो फॉर अकॉर्डिंगली विल यूज द फॉर लूप. उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है जे इन रेंज. What is the range for the j is 1,6 minus I. यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, I will print that what I will print is star. For our understanding I am printing the star. I am printing the star. यहाँ पे स्टार प्रिंट कर रहे हैं with the end e equals to double quote space. ये होने के बाद मतलब ये 4 स्टार होने के बाद I will print it as for k in range, k in range, ये k रेंज क्या है 1, I plus 1. लुक मैंने ये इंडेंटेड है, फॉर लूप के अंदर नहीं लिखा है मैंने, ये I जो है यहाँ पे इसके अंदर ये वाला फॉर लूप है, ये वाला फॉर लूप, ये वाला फॉर लूप, ये एक ही इसके नीचे आ रहा है. नाउ आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ k, print the value of k, and I will end it with again double quote. And now I will, now this is again indentation, and I will come here and I will write the print statement for new line. After everything, like मेरे को जब भी ये नए लाइन को जंप करना है तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा. Now this is indented, ठीक है. Are you getting it? ये समझ में आ रहा है कोड कैसे होगा वर्क? Yes, people. We'll write it and we'll try to execute it. ठीक है. So let's begin. Yes. बोलो ना. क्या हुआ? Is there any question or doubt? Sir, why we are using that k? देखो मैंने ये एक अपर ट्रायंगुलर है, वो शेप के लिए एक फॉर लूप यूज किया है जिसमें वेरिएबल मैंने j लिया है. ये जो लोअर ट्रायंगल है वो उस पार्ट के लिए मैंने क्या किया, एक करके वेरिएबल ले लिया. नाउ आई it is very difficult for us to now to tell the system that this is the part of something different and this is the part of, which is something different. अभी जब भी आपको अलग अलग एक्सप्लेन करना रहता है ये चीज, तो rather than keeping a same variable, अगर मैंने j यहाँ पे भी ले लिया और मैंने j यहाँ पे भी ले लिया सेम नाम से, तो there will be confusion for us and for the system also. So to differentiate between this we have used, तो ये जो ट्रायंगल है नो, ये वाला पैटर्न हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है. यहाँ पे जो है ना, ह्या पॅटर्नला फक्त आपण इकडे सरकवतोय आणि हे सरकवताना काय करतोय, हे ऍडिशनल इथं सरकवण्यासाठी हे ऍडिशनल स्पेसेस लागतायत आपल्याला. मग ह्या पॅटर्न साठी आपण जे व्हेरिएबल घेतलाय, ह्या पॅटर्न साठी जो आहे आपण त्याला के व्हेरिएबल म्हणतोय आणि रो साठी आपण आय वापरतोय. रो साठी आपण आय वापरतोय. हा पार्ट कळतोय का? के का बर घेतला तो कळतोय? यस. Yes, sir. We'll execute it first and then you will come to know about like better way कैसे दिखता है और वो क्या काम करता है. ठीक है. So what I will do is I'll go with the new code. Here in the J we are using 6 minus I.
and instead of this we are keeping it as star, and I am using for k in range like 1 comma I plus 1, and we are printing the value of k int e equals to, and every time it will jump to the next line, new line. So if I run this, okay, स्टार हम लोगों को डबल कोट में लिखना है बिकॉज इज लाइक a text है, ठीक है. Now you can see that like this is the pattern we wished for. Now instead of star, यहाँ पे अगर मैंने blank space रख दिया, blank space, तो blank space अगर मैंने डाल दिया तो you will see that it has designed the pattern like this. अब ये blank space हम लोगों ने यहाँ पे insert तो किया है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है, and we are feeling it like it is like a step kind of and stuff, step pattern ऐसे आ रहा है. Are you getting it? स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को दिख रहा है ऐसे. We are getting it. We got that pattern. Now what we can do is now we can have another pattern. ऐसे बहुत सारे पैटर्न बना सकते हो, एक के बाद आप एक चीज देख के दूसरे पैटर्न्स बना सकते हो. Let us go ahead with that too. हे कळालं का? म्हणजे फॉर लूप जो लिहिला, always remember that whenever you are writing the first for loop, this for loop for rows, ठीक है, this for loop is for blank spaces, and this for loop is for numbers. Are you getting it? Yes, people. Yes, sir. Okay, let's go ahead with the next. Yes, बोलो ना. क्या हुआ? Is there any question? Okay, if not, I will go with the new pattern. Now let's imagine like pyramid pattern बोलते हैं इस चीज को, and we'll try to do that. The pyramid pattern looks like this. 1 1 2 1 1 2. Okay, rather I should have started from this side. There should be 1 2 3 2 1. उसके बाद 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Now this is called as a pyramid pattern. Now in this pyramid pattern again the same stuff. ये वाला एक आएगा for loop, ठीक है. So we can put up star here, एक star, यहाँ पे 2 स्टार, 1 2 3, और फिर ये वाला 1 2 3 4. डोंट वरी अबाउट दिस साइड, ये वाला नहीं आता है. डोंट वरी अबाउट दिस, ये साइड पे हम लोग नहीं वर्कआउट करेंगे. Then we will work out with this. I will change the color so that it will be comfortable for you. We'll use this. ये वाला एक लेंगे और फिर उसके बाद ये वाला. So for I loop तो रहेगा, for I in range now 1 to 6, ये तो रहेगा ही रहेगा because we need lines. उसके बाद हम लोग जे करके स्टार्स तो तैयार कर ही लेंगे, के का यूज करके ये वाला भी ले लेंगे, ये वाला पैटर्न भी तैयार कर देंगे.
अब बाकी बचता है एल लेके ये वाला पैटर्न तैयार करना है, ठीक है। सो अभी जो हम लोगों ने इससे पहले वाला कोड लिखा था वो तो वैसे के वैसे ही आने वाला है, लाइक 1 and 1 2 एंड देन 1 2 3 1 2 3 4 जो हम लोगों ने अभी इससे पहले लिया था, देखो ना वही कोड है, वो वाला पार्ट ही है। सिर्फ यहाँ पे एडिशनल, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 2 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 3 2 1 आ रहा है, ये एडिशनल आ रहा है। ये वाले पार्ट को हम लोगों को तैयार करना है यहाँ पे। सो ये वाला पार्ट का कोड तो मैं वैसे के वैसे यहाँ का जो है वही लिखने वाला हूँ। तो इफ आई राइट दैट कोड पार्ट फॉर जे, चेक आउट व्हाट शुड बी द जे वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे। ये पहले इसमें केस में 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो पहले केस में क्या आएगा, आई की वैल्यू जब है 1, जे की वैल्यू जो है जो जे जो वैल्यू है वो 1 डाउन टू नो 4 है, तो ये यहाँ पे 5 आना चाहिए। एंड 1 डाउन टू लाइक 4 आएगा, 1 डाउन टू 3 आएगा, 1 down to 2 and 1 down to 1. So that's why we are taking this for loop. ये for loop को हम लोग range करके ले रहे हैं। For j in range क्या आएगा, j in range 1 comma I 6 minus I. So we'll print the value of, no यहाँ पे हम लोग फिलहाल स्टार लिख रहे हैं with end value e equals to double quote which is blank space. Then we write k in range 1 comma I plus 1 print double quote or other value of k comma end e equals to double quote. Now I will need for L in range. यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब बोलना है यहाँ पे आपको, ठीक है। लुक पहले रो में तो नहीं आएगा कुछ, पहले रो में तो कुछ नहीं है, तो I की वैल्यू जब 1 है तो मेरा L का वैल्यू जो है it will not have any stuff, so it will run down from 1 to 1. जब ये 1 का 2 हो जाता है, 1 का 2 हो जाता है, then it range from 1 to 2 because यहाँ पे मेरे को 1 प्रिंट करना है ना। उसके बाद जब ये 3 है तो ये 1 to 3 है, ये 4 है तो ये 1 to 4 है, अब जब ये 5 है तो ये 1 to 5 है। What should be here? What should be the range I should be writing for L? L के लिए रेंज क्या आएगा, 1 कॉमा बोलो बोलो 1 कॉमा क्या आना चाहिए। जब ये 1 है तो ये 1 डाउन टू 1 है, ये 2 है तो ये 1 डाउन टू 2 है, ये 3 है तो ये 1 डाउन टू 3 है, ये 4 है तो ये 1 डाउन टू, so this should be 1 comma I. So print L and end with double quote. Now this is indented, this is indented, this is indented here, and ये जो for loops है ये for loop अंदर के for loop है, तीनों तीनों के तीनों। और यहाँ पे इसके नीचे ये यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा नए लाइन के लिए, एवरी टाइम इट विल कम अप विद द न्यू लाइन, दिस विल गिव मी अ न्यू लाइन। Now we'll write this code and we'll see that we get pyramid or not, ठीक है, we'll see that we get the pyramid or not. So we'll take the help of this code as such, like again हम लोग इसी कोड को लेंगे बिकॉज ये तो पार्ट है ही, अभी सिर्फ बचता पार्ट यहाँ का है। what I will do is for L in range 1 comma I, right, and I will print the value of L end with double quote.
यहाँ पे instead of this, like for understanding purpose, I will keep the star. I will keep the star, and then you'll see that. अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ अभी, तो you'll see that. तो यहाँ पे ऐसे दिखते वक्त ये दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है. अभी देखेंगे, बताता हूँ और एक मजेदार चीज बताता हूँ. What has happened? ठीक है? Now it is looking like a pyramid, but what we had expected is not happening like that. ठीक है? जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से तो नहीं वर्क कर रहा है. टेक आउट लाइक 1, उसके बाद 1 to 1 तक के 3 है. ये 1 to 3, उसके बाद 1 2 आ रहा है. ये 1 2 आ रहा है. ये 1 2 3 आ रहा है और उसके बाद 1 2 3 4 आ रहा है. वी वांट इट इन रिवर्स ऑर्डर, राइट? ये रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, राइट? प्रिंट इसने रिवर्स में होना चाहिए. व्हाट शुड बी डन देन? ऐसे अगर मेरे को रिवर्स में प्रिंट करना है तो क्या है, कैसे कर सकते हैं, बोलो? व्हाट शुड बी डन? क्या कर सकते हैं हम लोग? किसमें चेंज लेके आना पड़ेगा हम लोगों को? Yeah, range में. So let's see. I will take a simple code for that purpose of like understanding. For I in range, okay, 1,6. 1,6. You can always start from 0. 0 to 5 भी ले सकते, but that adds up the confusion. That's why I avoided that. But you can always go with the range. जो भी रेंज है आप उस हिसाब से आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए. ठीक है? मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स. Now if I use for loop j in range, now range में मैं क्या बोलता हूँ? 5 बोलता हूँ, उसके बाद till 0 बोलता हूँ, and in the step of -1 बोलता हूँ. And if now I print the value of j with end equals to double quote, which is space, and if I print this line. Now, if you see this, you can see that it has down, like अभी यहाँ पे down counting 5 4 3 2 1 कर रहा है. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1. अब मेरे को इसको वापस से वही पिरामिड शेप, मतलब पहली दफा 5 आना चाहिए, उसके बाद 4 आना चाहिए, उसके बाद 3 आना चाहिए, उसके बाद 2 आना चाहिए, उसके बाद 1 आना चाहिए. अगर कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग, तो this starts from 5. It is always going to start from the 5. But what we want is, we want that should be like ending up with what? Ending up with what? क्या वैल्यू से एंड होना चाहिए उसने, राइट? तो वो हर बार अलग अलग वैल्यू के साथ एंड होना चाहिए. ठीक है? या अगर मेरे को शुरुआत जो है वो 5 से लेके, मतलब ऐसा 5 4 3 2 1 ऐसा चाहिए मेरे को, तो क्या है? मतलब पहले 5 4 3 2 1 आएगा, उसके बाद 4 3 2 1 आएगा, 4, उसके बाद 3 2 1 आएगा, उसके बाद 2 1 आएगा, उसके बाद 1 आएगा. तो we'll try to understand that in this particular case. Look, what we want is, there are like 2 patterns we want. दोनों पैटर्न्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. पहले इस केस में क्या चाहिए मेरे को? पैटर्न ऐसा चाहिए, लाइक पहले इसमें 5, उसके बाद 5 4, उसके बाद 5 4 3, उसके बाद 5 4 3 2, उसके बाद 5 4 3 2 1. ऐसा पैटर्न चाहिए. आई तो वैसे ही रहेगा. आई ये वाले पहले केस में क्या रहेगा? आई की वैल्यू रहेगी तुम्हारी 1. ये दूसरे लाइन में आई की वैल्यू क्या रहेगी? 2. आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4 एंड आई की वैल्यू 5 रहेगी. बराबर है? आई वैल्यू विल बी 5. Now, what will be the j? In first case, it will run down. It will start from 5, right? And then what it should run till? It should run till
ये यहाँ पे 5 आना चाहिए, और 5 रन डाउन टू 5, और अदर 5 रन डाउन टू 4, राइट। 5 रन डाउन टू 4 -1, बराबर। -1 तो ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हर बार मेरे को -1 से करना है। उसके बाद जे की वैल्यू इट विल बी 5 till 3, राइट। उसके बाद ये रहेगा जे का वैल्यू 5 डाउन टू 5 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, तो इट विल रीच अप टू 2। नाउ दिस -1 विल बी देयर। तो यहाँ पे ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है। जब i की वैल्यू 4 है तो मेरा क्या है ये, राइट, दिस इज 4, राइट। जब 2 है तो ये क्या है, 3 है। बट जब ये -1 हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इशू आता है, दैट आई विल लेट यू नो। तो ये अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं तो दिस विल बी, जब आई कैन राइट इट एज आई जो है, मैं i की वैल्यू 1 है, जो मैं 5 से सब्सट्रैक्ट करता हूँ। अगर 5 माइनस i पकड़ता हूँ, मैं इसको 5 माइनस i बोलता हूँ यहाँ पे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस इफ आई राइट इट 5 माइनस i। ठीक है, अगर मैं ये 5 माइनस i बोलता हूँ every time when, so if I run this, you can see that there is like 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 and 5 4 3 2 1. So this is what we have got, right? Now there is another thing. There is another pattern expected out of this as like this. इसमें ऐसा पैटर्न एक एक्सपेक्टेड होता है, और एक कि जिसमें पहले केस में ये 1, ठीक है, उसके बाद 2 1, उसके बाद 3 2 1, उसके बाद 4 3 2 1, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड है 5 4 3 2 1। check up. In this scenario, again the value of I equals to 1, I equals to 2, I equals to 3, I equals to 4, I equals to, but every time it run down still 0, right? Because 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो j की वैल्यू उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1। Now this is starting from 1, right? So this is like it starts from 1, it run down still 0, it run down still 0 -1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम j क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है, इट रन डाउन टू 0 -1। j इक्वल्स टू कहाँ से शुरुआत हो रही है, 3 से हो रही है, 3 डाउन टू 0 -1। ये j 4 से चालू हो रहा है 0, एंड j 5 to 0 -1। So what should be the code for this now? I की वैल्यू 1 है तो ये 1 से चालू हो रहा है, I की वैल्यू 2 है तो ये 2 से चालू हो रहा है। So can I write the code for this j as I comma 0? Yes, can we write it this way? We can. Yes, sir. So let's try to write that code. Yes, sir. Right. If I write the code for that in this fashion, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे instead of this, if I go with this I comma 0, then I will come, no, I will get it as 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1. Now अभी अगर आप ये वाला पैटर्न देखते हो पिरामिड वाला यहाँ पे, ठीक है, जहां पे मेरे को ये L वाला यूज करना है, L वाला, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आके डिस्कस करेंगे अभी। विल गो बैक इन दैट पर्टिकुलर कोड स्लाइड और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, देन 2 1 3 2 1 4 3 2 1, राइट। तो हाउ द पैटर्न इज लाइक, पहले केस में क्या है, मेरे को पहला लाइन जब आई should I take this part on the same like different ये
ये स्लाइड पे लेता हूं मैं। व्हाट वी वांट इज लाइक ये 1 है, 1 2 1 है, उसके बाद 1 2 3 2 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 3 2 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 4 3 2 1 है। हम लोग को इस पे ही इतने ही पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वी विश टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट। ये पहले केस में i इक्वल्स टू 1 है, i इक्वल्स टू 2 है। जब 2 है तो ये 1 तक के ही जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, वी डोंट वांट टू दैट। तो जब ये है तो मेरा L क्या होना चाहिए, L शुड फ्रॉम ये 1 टू 0 -1 आना चाहिए। I जब 3 है तो L मेरा क्या है, 2 टू 0 -1 आना चाहिए। जब I मेरा 4 है तो L मेरा 3 टू 0 -1 है। एंड जब मेरा I 5 है तो L इज 4 डाउन टू 0 -1 है। अब ये रेंज जो है, तो अगर मैं I की वैल्यू 2 है तो ये मेरा 1 आ रहा है, I की वैल्यू 3 है तो मेरा 2 आ रहा है, I की वैल्यू, सो L I can write it in general I -1, wonderful, I -1 comma 0 -1. Now this if I replace in that particular code, I will get what exactly pattern I wished for। ठीक है, जो हम लोगों ने पैटर्न एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट में क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड आई विल कीप इट एज एन हैश, जो हम लोगों ने चेंज किया है अभी। यहाँ पे I-1 आई विल कीप इट एज I-1 कॉमा 0, यहाँ पे -1। Now, if I run this, you'll see that it has given a perfect pyramid: 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1, and then 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Getting it? Now, pattern और पहले ही बता रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ये रेंज कैसे निकालनी है वो समझ के लो। ये पैटर्न वाले जो न्यूमरिकल्स है या पैटर्न वाले जो क्वेश्चंस है, ये रट्टा मार के आप कभी भी नहीं कर सकते हो। RATTA विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। लॉजिक समझ के करो। लॉजिक अगर समझ में आ गया, एवरी टाइम whenever the first for loop, and instead of I and J there can be an X and Y, there can be a P and Q, there can be an R and S। वेरिएबल में कुछ भी नहीं रखा है, नाम क्या है, अलग अलग नाम हो सकते हैं ना, यहाँ पे R and C भी हो सकते हैं। I can keep it as an R and this as a C, row and column। तो there should not be any dependency on that, there should not be any dependency on that। ठीक है, येतंय लक्षात? आता मी ह्या प्रत्येक ठिकाणी ना, मैं हर एक जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन रिप्लेस इट बाय स्टार। So wherever this J or K or L is written, I can replace it by star. I can always replace it by star so that I get star pattern. स्टार वाला पिरामिड बन सकता है वहां पे। ठीक है, येते लक्षात है सगळ्यांना? यस, यहाँ तक की क्लियर है? ओके, नाउ keep this as a challenge for you, keep this as a challenge for you, and I will let you know about। Okay, is there any question वगैरह है क्या कुछ? Okay, nevertheless, like there are two shapes which are very popular, and they are very used in analysis of this। The very first shape is this, like एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, एक तीन। Okay, this should be
So likewise, this is 1. This is like 1. This is another one. And this is another one. ये फॉर लूप तो बनते ही है, और इसके अलावा ये जो अंदर के there will be another for loop for a spaces in between. ये spaces के लिए लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक for loop बनेगा जो spaces रहेगा. यहाँ पे भी spaces लगेंगे. There will not be any spaces यहाँ पे लगेंगे. So I will need an I which will run down from how much? कहाँ से कहाँ तक के जाएंगे बाबा? I. This will run down from 1 to 6 again, but it will go for twice till this half part यहाँ तक के, और ये अलग से, ठीक है. इट विल बी लाइक दिस यहाँ तक के. तो ये आई के अंदर ये वाला जे रहेगा, ये वाला के रहेगा, और ये वाला एल रहेगा. सिमिलरली ये आई का अगेन यू कैन यूज द सेम नेम 1 down to 6, and now this again can be a j, this can be again a k, and this can be l again. ठीक है. Out of this will show you like half part of it, and then you can do it on your own the other half. Now look, यहाँ पे क्या है, पहले रो में 1 2 3 4 5 है. So I अगर मेरा 1 है तो मेरा ये 1 down to 6 जा रहा है, और ये फिर 1 down to 5 when it is 2. So 1 down to 4 when it is 3, 1 down to 3 when it is 4, and 1 down to 2 when it is 5. तो मेरा j का वैल्यू क्या आएगा? j equals to 1,7 minus I. ये फिक्स हो गया. It will be same. Now in the same fashion ये भी वैसे ही है. ये जो है वो भी सेम है. ये भी जो है ना, ये भी सेम टू सेम है. ये भी सेम टू सेम है. ये भी सेम टू सेम है. देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट. देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये भी सेम है. देखो ना, पहले लाइन में कितना है, यहाँ पे स्टार है. हम लोग 1 2 3 4 5 तो नहीं ले रहे, तो डोंट वरी अबाउट इट. लाइक 5 से चालू हो रहा है या 4 से चालू हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट. मैंने स्टार पैटर्न दिया हुआ है. अगर मैंने यहाँ पे 5 4 3 2 1 ऐसे दिया रहता तो दैट वुड हैव लाइक क्रिएटेड इशू. बट यहाँ पे तो सेम है. तो ये लाइन पे मेरे 5 है, ये लाइन पे 4 है, 3 है और 2 है, उसके बाद 1 है. तो I can use the same pattern. तो ये L के लिए भी I can use 1 7 minus I. ठीक है, सेम यूज कर सकते हैं. अब बचता है K का important part. Now K के लिए what I will do is I will show you with some different color again. Now there will be one star here, gap, and another star here. एक यहाँ पे 2 3 4, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8. सो पहले लाइन में ये 2 स्टार डालने हैं उसको, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 स्टार डालने हैं. ठीक है, तो पहला यहाँ से तो यहाँ पे हो गया कुछ नहीं. तो जब मेरा I equals to 1 है, my K is not having anything, there is nothing. जब मेरा I 2 है, how many star I want? 2. How many star I want? 2. अगर मेरे को 2 चाहिए तो my K should run from 1 to 3, right? It should run from 3, 1 to 3. Check it out, बहुत important है. जब I equals to 3 है, I equals to 3 है, तो K is running from, like, look how many, this is like 5, 1 to 5, because there are 4 stars I want.
4 स्टार्स चाहिए ना मेरे को। जब I इक्वल्स टू 4 है, K इज नथिंग बट 6 स्टार्स चाहिए मेरे को, 1 2 3 4 5 6, मेरे को 6 स्टार चाहिए। So I need 6 stars. So this will be 7. And I equals to जब 5 है तो मेरा K equals to 1 to 9 है, क्योंकि मेरे को 8 स्टार्स चाहिए टोटल। यहाँ पे ये साइड पे 4, ये साइड पे 4, तो इट विल बी 1 डाउन टू 9। तो पहले केस में तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। पहले केस में जब ये 1 है तो इट्स 1 डाउन टू 1 एक्चुअली, नथिंग। Now how I can write it in this fashion? अगर मेरे को डबल चाहिए तो how this will be? How I can correlate this 3 with 2 or 5 with 3 or 7 with 4 or 9 with 5? कैसे लिख सकते हैं बताओ? How we can write this? How the equation should look like? Okay, if I write the equation something like this, अगर ये 5 है तो ये 9 है, तो can I write it as 2 times I minus 1? And whether this equation holds good or not, देखो 2 minus I or 2 times I minus 1, so 5 multiply by 2, 5 multiply by 2 is 10, 10 minus 1 is 9, 4 है, अगर 4 है तो 8, 8 minus 1 is 7, 3, 3 2s are 6, minus 1 gives me 5, 2 2s are 4, 4 minus 1 is 3, and 2 1s are 2, and minus 1 is 1. So I get this part. ठीक है? Now if I go back here, if I go back for the coding part, and if I write the things like this, check out. If I go with for I equals to 1 to 6, तो वैसे का वैसा रहेगा, there is no problem about it. J का इक्वेशन हम लोग कुछ ऐसे डिसाइड किए हैं, 1 equals to 1,7 minus I, ठीक है? This will print star, so we won't be taking up the things. उसके बाद हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ योर के, जो के बीच में आने वाला है वो लिखने वाले हैं हम लोग। Now that k will be for k in range, ठीक है? How much range I want is as जो हम लोगों ने लिखा है 1, 2 times I minus 1, ठीक है? And then 2 times I minus 1, this will be printing the blank spaces, and then end with this, ठीक है? And another for loop which is L in range, again the same stuff, we will be using 1, 7 minus I, and we'll be printing the value of star with the end E equals to, and every time for the new line I will need this. So if I run this, I should get the pattern which we were expecting. Now this is the half pattern of this. हाफ पैटर्न ऐसे बनाया तो हाफ पैटर्न एग्जैक्टली उसके अपोजिट बनाना है, तो विल नीड अनदर फॉर लूप, ठीक है? ऐसे ही हम लोगों को और एक फॉर लूप लगेगा, ठीक है? बट चेक इट आउट, व्हाट विल नीड हियर इज, अभी यहाँ पे क्या है, पहला जब I इक्वल्स टू 1 है, I इक्वल्स टू 1 है, तो मेरे को ये वाला क्या है, with this thing what has happened is I now, हम लोग और एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं, I इक्वल्स टू 1 यहाँ से चालू हो रहा है वापस से, तो ये 1 है तो ये 1 ही है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, और 5 है तो 5 है, एंड सेम पैटर्न हियर ये साइड पे। सो J एंड L, तो हम लोग उसके हिसाब से हम लोग का इक्वेशन आएगा ये 1 डाउन टू I, ठीक है? 1 to I आएगा, और अदर 1 to तो 1, I plus 1 आएगा ये, ठीक है?
तो ये 1 comma I plus 1 is for J and L. For K, check it out. For K, जब I equals to 1 है, I equals to 1 है, K is equal to 1 to 9 है, 1 down to 9 है. उसके बाद I equals to 2 है, K क्या है, 1 down to 7. I equals to 3 है, K equals to 1 down to 5 है. Again the same stuff. I equals to 4 है, K equals to 1 down to how much, 3. And I equals to 5 है, तो K equals to 1 down to 1. Now let me know how we can write the equation for this. How we can write the equation for this. पहले केस में 9 है, उसके बाद 7 है, तो this is getting difficult, right? How to formulate the equation for the basis of this one? 9 7 5 4 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है. So every time I cannot solve this equation and will not be a good thing. So how to correlate this? So K को हम लोग कुछ उल्टा यूज किए, तो उल्टा माने like we will start with 9 and then we will end up with the, no, we can end up with the 0. ऐसे किया तो, or other I can start it with the 8 and then I will end it with 0. ऐसे किया तो, can we do that? और अब यहाँ पे अगर कुछ रिलेशन यू कैन मेक आउट ऑफ इट कि बाबा ये 9 है, सो दिस इज लाइक 9 इक्वल्स टू x, यहाँ पे प्लस माइनस i रहेगा. ठीक है, अभी वो x मेरे को ढूंढ के निकालना है जब मैं इक्वेशंस तैयार करूंगा. सो 9 इक्वल्स टू x, अभी ये प्लस i माइनस i कुछ भी कर सकते हो, नो, प्लस i इज 1. ठीक है, so x equals to 8 आता है. X equals to 8 holds good for only this equation. Now if I write the equation for this as the other equation, which is 7 equals to I x plus I is 2 here. So now if I go with this, I get the x value as 5. X value as 5. So I am getting that like हर बार मेरे को ये हो रहा है. So what I can do for that sake, मैं क्या कर सकता हूँ so that this becomes a easy task for me. This is what is the thought process need to be taken up. यहाँ पे तो हम लोगों ने आराम से लगा दिया ये वाला पार्ट कि बाबा जो है आय है जो जब पायु था ये था, तो सॉर्ट ऑफ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ इमेजिनेशन कर सकते हो क्या? देखो ना, यहाँ पे 5 था जब ये 9 था, तो यहाँ पे 9 के वक्त मेरे को यहाँ पे अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं क्या? यस, कैन वी मेक दिस एज अ 5? Yeah, people think of. Okay, I will give you a hint. Now यहाँ पे जो हम लोगों ने 7 माइनस आई वगैरह यूज किया है कि नहीं, ये 7 माइनस आई यूज किया है कि नहीं, वैसा वाला यहाँ पे कुछ यूज कर सकते हैं क्या? देखो, I will write it again. I equals to 1 है तो मेरे को k का वैल्यू क्या है, 1 डाउन टू 9 है. I equals to 2 है तो k का वैल्यू क्या है, 1 डाउन टू 7 है. I का वैल्यू क्या है, 3 है. k का वैल्यू क्या है, 1 डाउन टू 7 की जगह पे क्या है, 5 है. I का वैल्यू क्या है, 3 2 4. k का वैल्यू 1 डाउन टू 3 है. एंड I का वैल्यू जब 5 है तो k का वैल्यू 1 डाउन टू 1 है.
नाउ आई वांट दिस वेरिएबल वैल्यू, ये वेरिएबल वैल्यू जो है वो हम लोग को चेंज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ आई, ऑन द बेसिस ऑफ आई, ठीक है। नाउ लाइक एवरी टाइम, नो, हम लोगों ने अभी इससे पहले क्या किया था, इससे पहले कुछ ऐसा था, 1,1 था, उसके बाद 1,3 था, 1,5 था, 1,7 था और 1,9 था। तो यहाँ पे हम लोग को अचीव करने के लिए हम लोगों ने 2 टाइम्स आई कर दिया और -1 बोल दिया। सो आई का वैल्यू जो भी था उसको लेके कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, बट व्हाट आई वांट इज आई का वैल्यू यहाँ पे मेरे को 5 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे आई का वैल्यू 5 बनाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज 6 माइनस आई कर सकता हूँ। यस, सो 6 माइनस आई विल बिकम 5। सो दिस मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 कर देंगे तो what we'll get it as 6 minus I is 5. 5 multiplied by 2 will be 10. 10 minus 1 will give me a 9. Now whether this hold goods for everyone? Now I का वैल्यू जब मेरा 2 बनेगा, I का वैल्यू मेरा जब 2 बनेगा, तो what will be the value? 6 minus 2 multiply by 2 minus 1. What it will do? 6 minus 2 is 4. 4 multiplied by 2 is what? 8. 8 minus 1 will give me a 7. So this holds good for this also, this also. Let's check whether this holds good for this also. So 6 minus 3, 6 minus 3 multiply by 2 minus 1. So 6 minus 3 is 3. 3 multiply by 2 is 6. 6 minus 1 is 5. It holds good for this also. अभी इसके लिए देखेंगे whether this equation holds good for us. 4 4 minus कर देंगे ना, so 2 multiply by 2 is 4 minus 1 will give me a 3. So it holds good for this also. मतलब ये वाला सब satisfy हो रहा है। आखिरी वाला 5, 6 minus 5 is 1, 1 multiplied by 2 is 1 again minus 1. Well, so I can write the equation as 1 comma round bracket, another round bracket, 6 minus I multiply by 2 minus 1. I can put another round bracket. So this equation we devised from this. Now if I write this code, okay, if I write this code which is like हम लोगों ने अभी तैयार किया हुआ है 7 minus I plus 1. So if I change this to I plus 1, now this should be changed to I plus 1 and this should be changed to 6 minus I, ठीक है, 6 minus I which should be multiplied by 2, and if it is, ठीक है, उसको अगर मैं करता हूँ -1 से, ठीक है, if I subtract it by -1 and then it is I plus 1. Now you can see that the pattern we were expecting will be printed, which is okay. राउंड ब्रैकेट में कहीं तो हम लोगों का परेशानी, तो 6 minus I, यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, ये वाला इधर, ओके, एक एडिशनल राउंड ब्रैकेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, नेवरदलेस अभी हो जाएगा. So if I run this, you'll see that the pattern we were expecting is printed. आपको लगता है यहाँ पे सर ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये लाइन और ये वाला भी एक्स्ट्रा हो रहा है, it is not giving a proper diamond shape. You can always go with the changes in the program, ठीक है. Now hopefully this gives you a clarity कैसे डिवाइस करना है. ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, ट्रिकी था, बट लॉजिक जैसे जैसे आप मैथमेटिकल डेवलप करोगे उस हिसाब से, क्योंकि ये वाले पैटर्न्स बहुत इजी रहते हैं बनाने के लिए, और पूछा जाता है कि बाबा ये बनाना कैसे है, तो तैयार कैसे किए जाते हैं, तो उसको उसी हिसाब से. Now, as I told you, this solution for this particular problem, the challenge for you will be now different.
what will be the challenge for you then? The shape in this fashion. तो ये आपने पिरामिड बनाया था, तो ऐसे ही एक उल्टा पिरामिड भी बनाना है, ठीक है? So you can have this, तो ये वाला पैटर्न वाला, ठीक है? तो ये वाले गैप को, ये वाले गैप के लिए आपको के करना है, और जे और एल, और ये के, जे और एल. सो इसके हिसाब से आई यहाँ पे नीचे आई अलग से, और ये ऊपर आई अलग से. सो आपको उस हिसाब से तैयार करना है. दिस पैटर्न यू नीड टू, पैटर्न आपको लिखना ही होगा. दिस इज द चैलेंज फॉर यू. Challenge number 5 will be this, a diamond shaped, ठीक है? Diamond shape. Okay, can you do this diamond shape on your own? We'll go ahead with this. हम लोग आगे जाएंगे. We'll see that. Yes, people. Yes, sir. Okay, great. Let's go ahead and we'll talk about this. Now what I want is, instead of this, we'll want like, अगर मेरे को ऐसा चाहिए A B C D and A B C D. Now if I want this kind of a pattern, then what I can do, there will be I which will have like 1 2 3 4 and 5. बट जे का वैल्यू जो है, वो जे का वैल्यू कुछ अलग चाहिए. अभी जे का वैल्यू हम लोग को ABCD चाहिए ना. ABCD के लिए जो हम लोगों ने स्टार्ट में मैंने दिखाया था कि इनपुट मेरा जो स्ट्रिंग रहता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को हम लोग टाइप कास्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं. इन सिमिलर फैशन, लाइक कंप्यूटर को ABCD समझ में नहीं आता है. इट डजंट अंडरस्टैंड ABCD. Computer doesn't understand ABCD. What computer understand is zeros and ones. तो ये A और B को है ना, एक पर्टिकुलर इनको जो बोलते हैं वो ASCII कैरेक्टर रहता है. ASCII कैरेक्टर स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए एक स्टैंडर्ड कोड बनाया गया हुआ है. तो इनको ASCII कैरेक्टर्स बोलते हैं. तो ASCII कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो भी आप यूनिकोड या ASCII कोड जो बोलते हैं ना, तो हर एक इसके लिए अलग अलग. तो अगर मैं कैपिटल A बोलता हूँ, तो दैट इज हैविंग एन ASCII कैरेक्टर डेसिमल 65. तो इसी को मैं बाइनरी में लिखता हूँ तो 0110, दिस इज 101. अगर मैं ये और अदर दिस इज लाइक मैं हेक्सा में कन्वर्ट किया हूँ, डायरेक्टली हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया है, ऐसे नहीं चलेगा. 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है. वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर. बट आई डोंट वांट टू गो इनटू द बाइनरी एंड ऑल दैट स्टफ. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज 65 से आपका कैपिटल A to Z चालू होता है. तो 65 अगर A है तो 66 मेरा B है, 67 C है कैपिटल, 68 मेरा कैपिटल D है, एंड 69 मेरा कैपिटल E है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये वाला मैं डायरेक्टली जो डेसिमल नंबर्स है, आई कैन यूज देम, एंड आई कैन यूज द CHR करके एक फंक्शन है जो मेरे को ये वाले नंबर को, मैं CHR 65 लिख देता हूँ, तो इट विल प्रिंट अ कैपिटल A ऑन माई स्क्रीन. सिमिलरली अगर मैं 97 से चालू करता हूँ तो ये स्मॉल A है, 98 इज small b, 99 is small c, and 100 is d, and 101 is ये small ABCD के लिए. तो 65, 66, 67, 68, 69 यूज करेंगे, एंड 97, 98, 99, 100. अब आपको लाइक दिस हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड. ये जो कंप्यूटर सोसाइटी के जो साइंटिस्ट थे वे बैक इन दिस ASCII एक इंस्टीट्यूट है जो इंफॉर्मेशन, जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स बोलते हैं ना, IS स्टैंडर्ड्स, उसी के अंडर इसको भी एक स्टैंडर्डाइज किया गया है. जो भी कंप्यूटर रिलेटेड काम करेगा उसको यही कैरेक्टर्स को अगर तैयार करना है तो ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे बता के रखा है. अब मेरे को बोलो, ये J की वैल्यू अगर मेरे को ये A करके प्रिंट करनी है, तो J शुड स्टार्ट फ्रॉम 65.
Now J should start from 65 and it should reach up to 69. अगर ये 69 तक के रीच करना है तो उस हिसाब से हम लोग को अभी पैटर्न तैयार करना पड़ेगा. लेट्स ट्राई टू राइट ABCD फर्स्ट. ABCDE ऐसे करके 5 लाइन पे लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग. विल राइट द कोड फॉर दैट. इफ आई गो बैक and if I try to write the code for that. So again, I need a for loop for I in range 1 to 6. It's a standard. And then for loop J in range, I can start it from 65. There is no problem. And I will reach till 670. And now I will print CHRJ. And every time I will end it with double quote. ये एंड हम लोगों को नए लाइन की जगह पे वहां पे आगे स्पेस देगा. एंड प्रिंट will have a new line every time. Now with this CHR function, we will get that output. So you can see that it has printed ABCDE, ABCDE, ABCDE because capital मैंने बोला था ना capital 65 से 70. 69 इंक्लूड नहीं होता है, 69 तक के ही जाता है, तो 70 तक के ये किया है इसने. Now let me ask you this question. What should I write here? मैं यहाँ पे क्या लिखूं जिसकी वजह से मेरे को A, AB, ABC, ABCD और ABCDE ऐसा पैटर्न आए. यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे वो बताओ. अगर आपको वो रेंज वाला पार्ट फॉलो हुआ है, आपको समझ में आया है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. बोलो क्या आना चाहिए. सर 65 प्लस I. ओके 60. ओके यहाँ पे 65 and 65 plus I, right? This is what you wished for, right? Correct? यही expected है ना? Yes. Yes. Shall sir. we check out? Shall we check out? Okay. Good. You followed it. So what is mean by this? अगर मैं I plus 1 बोलता हूँ, यहाँ पे अगर मेरा 1 है तो I plus 1 बोल रहा हूँ मैं. And then if I'm having 65, मेरे को 65 के बजाय आगे की लाइन पे 65 से लेके 66 तक के जाना है, 67 तक के जाना है, 68 तक के जाना है, so that I am getting the pattern accordingly. उसके हिसाब से मेरे को पैटर्न मिल रहा है. Getting it? Okay. अगर मेरे को उल्टा चाहिए, मेरे को पहले लाइन में ABCDE चाहिए और दूसरे लाइन में ABCD तक के चाहिए, उसके बाद ABCD, उसके बाद ABC, उसके बाद AB और उसके बाद A चाहिए, तो क्या आना चाहिए? This is what we have. A very good thing. आगे का पैटर्न मेरे को क्या चाहिए? Exactly इसके अपोजिट वाला चाहिए. मतलब ये लाइन मेरी पहली लेनी चाहिए, उसके बाद ये दूसरी लाइन रहनी चाहिए, तीसरी, और उसके बाद ये वाला ऐसा उल्टा, ऐसे इसको उल्टा घुमाना है मेरे को, इसी को उल्टा करना है, इसी को उल्टा. तो व्हाट शुड बी द चेंज इन हियर? मेरे को यहाँ पे चेंज क्या आना चाहिए? 65, 71 minus I. 71 minus I. Correct? Yes. Wonderful. Good, good. You really followed it actually. So now with the help of this, you can make a different patterns. So again, the same stuff, you can go with the pyramid of it. You can have a combination of it. You can devise the different stuffs. So you can have so many different stuffs all together. You can perform it. जो चाहिए वो कर सकते हो. Now instead of this, like if I would go with like यही अबर चीज मैं ये कुछ ऐसे कर देता हूँ. If I start it with 97 and if I go like 97 के बाद अगर मैं चालू करता हूँ तो it should go till 102, right? And if 102 or 103, let's see.
103. It should be 103. And then we can see A, B, C, D, E in small letters. अगर मेरे को small letters चाहिए तो. Now this is the ASCII character. 97 is a decimal value of small a. And instead of this, you can always check out with different patterns. मतलब 97. Sir, इसकी जगह पे मैंने दूसरा नंबर वगैरह डाल दिया. Now the ASCII characters from 30 30 to 40. अगर 30 to 40 करते हैं तो वो digits रहते हैं आपके 1 2 3 4. So if I try to do that, like let's see what we get out of it. The like fun part. 30 or 31. I just don't remember exact, but if 36, if I go with this. Okay, no, now these are ASCII characters which are not able to like it's not able to print out. 40 to 46, if I do it, now you can see that like these are like patterns which are different. ठीक है, ये अलग अलग है. जो ASCII मतलब क्या है, जो आपके कीबोर्ड पे अलग अलग रहते हैं ना, वो टोटल 256 different characters represent करते हैं. So you can put up different numbers and combinations of it that will formulate a different stuff altogether. Have you understood this tricky questions of ये particularly? समझ में आया है पैटर्न? बहुत जरूरी चीज है, आपको लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके एप्टीट्यूड में भी पूछते हैं, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है. क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें यहाँ पे एक ब्लैंक रखेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे अगर मेरे को ये वाला पैटर्न अचीव करना है तो व्हाट शुड बी द रेंज हियर, यहाँ पे क्या रेंज रहना चाहिए. So you should be able to devise after looking the pattern देख के हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, क्या रेंज आएगी, वो समझना बहुत जरूरी है. That you should understand categorically, right? So that is the expected thing from you. बहुत जरूरी चीज है वो. Yes, getting it? Okay. Let us go ahead and try to understand something which is now. Yeah. Let's go ahead. Hopefully you have followed this part and you will understand the better way. If now here one thing is for sure, until and unless you do the practice for yourself, आप खुद होके अगर practice नहीं करोगे तो ये वाला जो मैंने अभी भी बताया है ना, you will like remember that and you will be happy with understanding of it for like 1 or 2 days or maximum 1 week. After that, again the same stream, like blank stuff, it will become a blank. So let's try to understand the concepts of break, continue and pass. ठीक है, ये तीन कीवर्ड यूजुअली लूप में यूज होते हैं जो बहुत काम में आते हैं. नाउ लेट अस इमेजिन दैट कि आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है. इफ यू आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ L which is a list of numbers like 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है, and so on and so forth. You can go on. Now you are using this for loop for numbers in L, ठीक है, for numbers in L. Print numbers. So what it will do is it will directly take this and it will print numbers like 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now you are having a list, but what I want is this for loop should also check out if इसमें कहीं पे भी 5 अगर आता है, if number equal to 5, तो it should break. मतलब ये लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, वहां से आगे नहीं चलना चाहिए, वहां से आगे नहीं चलना चाहिए, ठीक है, तो ब्रेक हो जाना चाहिए. That is the purpose. Look what happened, it has reached 1 2 3 4 and the moment it has checked out and ये इसके अंदर का जो नंबर है वो 5 उसके साथ इक्वलाइज हो गया,
जो कंडीशन मैंने चेक की उसके साथ वो सेटिस्फाई कर गया, तो उसने ये फॉर लूप को ब्रेक कर दिया, ये फॉर लूप आगे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, व्हाट इज दिस, लाइक इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ द लूप, ये ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, इसने क्या कर दिया, ये पूरे लूप को ब्रेक कर दिया। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी तो ब्रेक कर दिया, अब मेरे को क्या करना है, जब भी ये इसको 5 मिले तो उसने 5 प्रिंट नहीं करना चाहिए, बाकी सब करना चाहिए, बाकी उसने फॉर लूप को कंटिन्यू करके आगे के एग्जीक्यूशन करना चाहिए, लेकिन 5 प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ ब्रेक आई विल प्लेस I will place continue here. With continue what happens is, ये नंबर अगर 5 आता है तो what it will do is simply ये आगे के, इसके आगे के जितने भी स्टेटमेंट्स है, मतलब ये फॉर लूप के अंदर के, उसको स्किप कर देता है और ये फॉर लूप को आगे के नंबर को भेज देता है, मतलब वो 6 7 कंटिन्यू कर लेता है। बट ये 5 के बाद जो ये आया हुआ कंटिन्यू है, वो ये पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने नहीं देता है, सिर्फ ये क्या करता है, आगे के इसको कंटिन्यू करने देता है। और वो 5 मतलब सीधा कंडीशन जो है, उसको कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि बाबा 5 है, तो लूप कंटिन्यू कर ले, बट आगे के इसमें एग्जीक्यूट मत कर, वो पार्ट एग्जीक्यूट मत कर। ठीक है, तो लेट्स सी द आउटपुट। आपको आउटपुट में 1 2 3 4 आएगा, उसके बाद 7 8 9 आएगा, मतलब 6 7 8 9 आएगा। सो लेट्स सी, यू कैन सी दैट 1 2 3 4 आया, उसके बाद 5 आने के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। 5 आने के बाद इसने कंटिन्यू बोल दिया, कंटिन्यू बोलने की वजह से क्या हुआ, ये आगे इधर आ गया, एंड देन it has continued from 6 7 8 9. So it has skipped whenever there is a 5, it has skipped that particular print statement execution. तो कंडीशन जो भी है, कंडीशन की वजह से कंटिन्यू कर लिया उसने, and it has skipped that particular print statement. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू? ब्रेक में क्या किया उसने, इसने पूरा लूप ही ब्रेक कर दिया, इसने पूरा लूप ही ब्रेक कर दिया, आगे का पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं किया। कंटिन्यू में क्या हुआ, जैसे ही उसको कंडीशन मिला, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, उसने आगे के जो इसके अंदर के स्टेटमेंट्स है उसको उसने स्किप कर दिया, उसने स्किप कर दिया। सो इट हैज स्किप्ड 1 2 3 4 होने के बाद 5 वाले स्टेटमेंट को स्किप कर दिया, 6 7 8 9 प्रिंटेड अप। एंड फाइनली देयर इज अ फॉर I in range 1 to 10 pass. What does it mean by pass? If you literally you are doing a time pass, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कंप्यूटर को बोलना है कि बाबा कुछ मत कर, सिर्फ you need to pass that statement, ऐसे सिर्फ पास करना है। So you need to press this. This will not execute anything. Now this pass statement tells the computer do nothing. It tells the computer do nothing. तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोलना है कंप्यूटर को कि डू नथिंग? ठीक है, मतलब देयर शुड बी अ क्वेश्चन। ओके, लेट मी टेक अ पॉज एंड आस्क यू, हैव यू अंडरस्टूड द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट? कंटिन्यू Yes, और sir. ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, नाउ आई विल लेट यू नो अबाउट द पास स्टेटमेंट। ठीक है, क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, ठीक है, आपका मतलब जो भी जनरलाइज्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है, when you are talking about computers or computational devices like your mobile devices, no, your mobile devices work on a processor। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है। अब आपके मोबाइल के अंदर है ना आर्म, एडवांस रिस्क मशीन बोल के आर्म 11 प्रोसेसर है, उसी को no, ARM is the world's most like prominent company। ARM Intel को भी प्रोवाइड करती है कोर। Intel is a client of ARM कंपनी। ठीक है, बहुत जरूरी है आपको ये समझना, जो भी आप डिवाइसेस यूज कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो आप जो गैजेट्स यूज कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम होनी चाहिए आपको।
ARM11 इज सच अ वंडरफुल थिंग, मतलब ये प्रोसेसर है, ये आर्म कंपनी ने अलग अलग कंपनियों को उनके कोर बेचे हैं। कोर मतलब उनका प्रोसेसर जो रहता है वो बेचा है, उसके नो इसका रॉयल्टी मिलता रहता है, पैसा मिलता है आर्म कंपनी को। तो इन्होंने कॉलकॉम कॉलकॉम कंपनी को बेचा। कॉलकॉम कंपनी को क्या बेचा? उनका कोर बेचा। और कॉलकॉम कंपनी ने स्नैप ड्रैगन ड्रैगन ठीक है, ड्रैगन स्नैपड्रैगन करके वो प्रोसेसर का नाम दे दिया। स्नैपड्रैगन 888 अभी सबसे पावरफुल ये है। आपके इसमें 720, 750, 732G वगैरह रहेंगे अगर आपके लेटेस्ट मोबाइल है तो। उससे पहले के रहेंगे तो 6 ये रहेगा वर्जन। अभी 888 इज द मोस्ट पावरफुल यू हैव। स्नैपड्रैगन के साथ इनका जीपीयू भी वगैरह होता है। अब ये जो वर्क करते हैं एट द रेट ऑफ 4.4 2.4 गीगाहर्ट्ज या 2 गीगाहर्ट्ज या 1 गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज तो आज की डेट में बहुत पुराना चीज है। नो गीगाहर्ट्ज ये प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कॉलकॉम का है, मीडियाटेक का है। मीडियाटेक is another Chinese based company which provides this MediaTek processors। Snapdragon और MediaTek अभी ये मेजर दो ही है जो इवन इवन एप्पल जो है ना, एप्पल जो बायोनिक चिप बनाया हुआ है, बायोनिक चिप, इसके अगेंस्ट योर ARM11 को प्रेफर कर रही है एप्पल अभी। ठीक है, देयर इज अ वेरी बिग कंपटीशन बिटवीन दिस। सो एप्पल इज बिकमिंग अ क्लाइंट ऑफ एन ARM कंपनी। थिंक ऑफ इट। ठीक है। Now, the basic understanding for us you need to understand is 1 gigahertz अगर मेरा speed है तो what is mean by 1 gigahertz is इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है प्रोसेसर के अंदर, डोंट वरी टू गो इनटू दैट डिटेल। एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 नैनो सेकेंड में एग्जीक्यूट होती है। हाउ मच? 1 नैनो सेकेंड। यू कैन इमेजिन दैट इफ यू स्टार्ट राइटिंग कोड, जो है ना कोड आप लिखना चालू कर दे तो ये कोड, अब कोड अगर 1 into 10 to the power 9 लाइन्स है ना, 1 into 10 to the power 9 लाइन्स ऑफ कोड, तो ये इतना सब कुछ है ना एग्जीक्यूशन जो है ना, अगर मेरा 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है ना तो ये 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर देता है सीधा। अगर इसका स्पीड ये है तो 1 नैनो सेकेंड है तो हर एक इंस्ट्रक्शन अगर 1 नैनो सेकेंड में एग्जीक्यूट कर रहा है तो 1 into 10 to the power 9 लाइन्स ऑफ कोड। चेकआउट, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप करके है ना कितने लाइन्स कोड लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ऑफ कोड। और इसको ये इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में बना देता है। हर एक इसके लिए मैंने अगर लूप के हिसाब से 1000 लाइन्स भी बोल दिया, हर एक फॉर लूप के लिए मैंने 1000 लाइन्स ऑफ कोड बोल दिया, तो भी यहाँ पे 80,000 लाइन्स ऑफ कोड बनेगा। कितना? 80,000 लाइन्स का कोड। 80,000 इज, ठीक है, 80,000 इज 8 into 10 to the power 5 लाइन्स ऑफ कोड्स। और यहाँ पे मेरा क्या बोल रहा हूं मैं? 1 into 10 to the power 9 लाइन्स ऑफ कोड is getting executed in 1 सेकेंड। तो ये अगर मेरा 1 सेकेंड में हो रहा है तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगा रे बाबा? हाउ मच टाइम इट विल टेक? इट विल बी वेरी फ्रैक्शन, नो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में वर्क करेगा। या टू बी प्रिसाइज, राइट? तो it's very small value, it's very small value that it gets executed now। अब ये दुनिया में सभी लोग यही स्पीड से काम करते हैं क्या? या सभी डिवाइसेस इसी स्पीड से काम करते हैं क्या? नहीं। आपका मेमोरी जो है वो थोड़ा सा कम, अगर आपने आपका डिस्प्ले देखा रहेगा, स्क्रीन आपके मोबाइल पे डिस्प्ले जो रहता है ना, वो अभी 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 लॉन्च किए हुए हैं और उसमें बताया है कि 120 हर्ट्ज अगर रिफ्रेश रेट है तो इट्स ए स्मूथ, वेरी स्मूथ रिफ्रेश रेट है। मेरे को बताओ, अगर मेरे डिस्प्ले के कंटेंट्स 120 हर्ट्ज पे
करने हैं और मेरा वर्किंग स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज है प्रोसेसर का, मेरे प्रोसेसर का वर्किंग स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज है, मेरे डिस्प्ले का स्मूथ आउट 90 हर्ट्ज भी है तो वी आर पेइंग अराउंड 20,000 रुपीज, 120 हर्ट्ज है तो मिड 40K के रेंज में आपके मोबाइल से, मिड 40K के। अगर परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं ना, परसिस्टेंस ऑफ विजन, मैं मेरे को जो दिखता है कि नहीं, जो स्क्रीन पे, जो मेरे को आंख, मेरा जो परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं ना, उसको 25 हर्ट्ज के ऊपर का ज्यादा समझ में भी नहीं आता है एक्चुअल में देखा जाए तो। 10 मिली सेकेंड इज रिफ्रेश रेट, तो 120 हर्ट्ज अगर मैं रिफ्रेश रेट बना रहा हूँ तो ये इसको क्या है, 120 हर्ट्ज के हिसाब से रिफ्रेशिंग चाहिए, मतलब स्क्रीन के कंटेंट, जो मोबाइल डिवाइस के ऊपर के स्क्रीन के ऊपर के कंटेंट, और ये 1 गीगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहा है, तो ये 120 हर्ट्ज है, ये 1 गीगाहर्ट्ज है, इन दोनों में स्पीड डिफरेंस है। So to match up with the speed, there we need to make our processor do nothing. So time pass कर बाबा, तो टाइम पास कर, मत ज्यादा मत भाग, मेरे को 120 हर्ट्ज से ही देखना है मेरे को। 120 हर्ट्ज इज स्टिल वेरी बिग नंबर एक्चुअली, वहां पे नंबर ऑफ पिक्सल की वजह से थोड़ा कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी लगती है, देयर इज अ कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी लगती है, प्रोसेसर का पावर यूज होता है। अगर 90 हर्ट्ज करता हूँ या नीचे उसके जाता हूँ 50 हर्ट्ज वगैरह के नीचे वगैरह, इवन 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर अस टू वर्क आउट विद एक्चुअली। सिर्फ ये गिमिक है, मोबाइल बेचने के लिए गिमिक कर रहे हैं लोग बहुत, और चार चार कैमरा लगा के बेच रहे हैं अभी तो, नो इट्स गिमिक एक्चुअली, नथिंग स्पेशल एज सच। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडीज लाइक कंपनी, बट इट इज व्हाट इज मेकिंग अस अ फर्स्ट। सो प्रोसेसर का एक्चुअली स्पीड रहने के बाद भी उसका कैपेबिलिटी इतना नहीं है कि वो मैचअप करे, तो देयर इज एन डू नथिंग। सो टू डू नथिंग, ये जो पास वाला है ना, ये वाला स्टेटमेंट काम में आता है, दिस स्टेटमेंट वर्क्स फॉर दैट। So doing a delay kind of stuff, or doing a time pass, do nothing kind of stuff. So to make our processor do nothing, we use the pass statement. So we have tried to understand break, we tried to understand continue. People, please make sure that you're keeping your mics turned off. Break, continue, and pass. So these are the three things that you should understand. Okay? So let's continue on that note. Way like you go back. Hopefully, जो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस पास, लाइक यू कैन यूज इन फंक्शन आल्सो। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, डिफाइन माय फन, एंड देन इफ आई डू अ पास, देन आई कैन कॉल माय फन। ठीक है, so it runs perfectly without giving you any error. So what this function does, it do the time pass, nothing else. मतलब ये सिर्फ पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। okay? So you need to do a pass, or it passes to the next instruction whatever is there, and do nothing, and it works like that for doing a time pass. Are you getting it, everyone, people? So तीनों चीजें समझ में आई है, hopefully, right? Great. So how we will be proceeding now? Like we had sufficient for the day. We tried to understand for loop and nested loops today. We also tried to understand break, continue, and pass. We have already gone with the functions. Now importing model, I wanted to do it today, but like leave it. हम लोग कल देख लेंगे. There is no problem out. हम लोग कल इसके बारे में देख लेंगे। इनपुट एंड आउटपुट रीडिंग फाइल्स वगैरह फिलहाल आई विल नॉट टेक यू थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट विल बी अ लिटिल हेवी and having a little emphasis on this particular part in your
एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल एप्टीट्यूड पार्ट थोड़ा सा कम एम्फोसिस दिया जाता है, एंड इवन दीज प्रोग्राम्स आर नॉट like able to ask in the interviews also, but we will give you the glimpse कि ये कैसे होता है और क्या काम में आता है, that I will tell you. Tomorrow we'll be discussing about the exception handling, what is mean by exception वगैरह भी बताता हूँ, and how the exception are handled, that we will take tomorrow. And once we will finish up with this part, it is very important for us to understand the oops concept. तो oops concept उन्हीं को समझ में आने वाले हैं जिनको फंक्शंस समझ में आए हैं. अगर फंक्शन आपको समझ में नहीं आया हुआ है अभी तक के, तो दिस विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि क्लासेस जो होते हैं, क्लासेस ये जरा अपर अपर चीजें है, यहाँ से आगे जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है. डिफिकल्ट बोलने से अच्छा है, rather than as you people are not having that kind of a soft core branches related exposure, कंप्यूटर रिलेटेड. एक तो मेरे को ये एक चीज बोलनी है आज, मैं ऑफ द रिकॉर्ड वगैरह ये कर सकता हूँ. आई विल लेट यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टफ, बिकॉज लुक व्हाट आई पर्सनली फील इट. ठीक है, मेरे को पर्सनली क्या लगता है कि